So, welcome to Levels Cancer and ZenOnco.io. It's Divya here from ZenOnco.io, and this is our Cancer Healing Journey Talks, where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as patient, caregiver, or warriors like you who have been through this journey and came out very beautifully and now inspiring others by sharing their journey. And this is very special and close to our heart because many patients and caregivers have told us that when we listen to others' journey, it inspires us a lot. And being on this journey myself, I feel that when we listen to others' journey, it inspires us and boosts our confidence that when they have been through so much and came out of it, then we can too. And it also does not make us feel alone, right? Yes, yes, exactly. Yes, so thank you for giving your time. It's an honor to have you with us. Could you please introduce yourself and share your journey, how it all started and how you navigated through it? Yes, sure. My name is Pragati and I belong to Lucknow. Could you please, Okay. yes, I Uh, can, my name is Pragati yes. Gupta and I belong to Lucknow. So Hmm. it started when I was like 11 years old. It started from a small fever kind of thing, but that Oh. things went on. It came out that I have been suffering from typhoid. Then doctor said no, it could be tuberculosis. I went on treatment and treatment. Almost 2 years were like wasted on going to one doctor, then another doctor. Oh. But then one day it was like ki I was not able to breathe properly. So Hmm. we went to one of the hospitals in Lucknow. So they said, I think she'll not breathe for more than 2 hours. Just take her away. And everything was not like कि एकदम से पैरों तले जमीन खिसक जाना टाइप सिचुएशन थी. Yeah. Ah. We went to another doctor. Then he gave me oxygen, and then one doctor came and she Hmm. tested some. I got very much lymph nodes on my neck and my whole body, so she took a part of those nodes from my neck and she tested it and she said that it's lymphoma, and we don't know which type of lymphoma is this, so you Hmm. can go to Delhi or you can go to Tata Hospital. So immediately after that we went Tata Hospital, and it almost took 1 month to diagnose which type of cancer it was for me. Oh. So at last we got to know कि yes, it's non-Hodgkin's lymphoma. Then doctors were like एकदम से टेस्ट कर रहे थे कि ये वाला कीमो सही जाएगा कि नहीं. तो Hmm. टेस्टिंग में भी रिजल्ट अच्छे आए. तो उन्होंने कहा कि ओके लेट्स गो फॉर दीज ट्रीटमेंट ओनली. तो आई वाज गिवन ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 12 to 13 chemotherapies, and Hmm. it took 1 year. And apart from this bad phase, there were also some good phase in this journey only. Like all my schooling was stopped. So I thought मेरा overall development रुक रहा है. But now I feel that I'm very much mature than my friends, क्योंकि मुंबई में बहुत सी चीजें मैंने ऐसी देखी या ऐसी सीखी जो शायद मैं स्कूल लाइफ में कोई बच्चा नहीं सीखता है. तो आई एम लाइक वेरी मच थैंकफुल टू मुंबई एक्चुअली में. वहां से मुझे एक न्यू लाइफ मिली, एक मेरी नई जर्नी बिगिन हुई. और वहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की डॉक्टर्स, मतलब जमीन आसमान का फर्क समझ में आता था. एंड एक सबसे बड़ी बात ये थी मेरे अंदर कि मैंने कभी सोचा नहीं कि Hmm. मेरे को कुछ हो गया. मैं हमेशा ये सोचती थी कि अभी जो चल रहा है चलने देते हैं, मुझे तो आगे का सोचना है कि हाँ मैं मेरे फिर से हेयर ग्रोथ होंगे, फिर से बाल अच्छे अच्छे आएंगे, मैं फिर से इधर उधर घूमूंगी फिरूंगी. एंड उस टाइम पे भी मैंने घूमना बंद नहीं किया. मुझे घूमना बहुत पसंद था, मतलब हद से ज्यादा घूमना पसंद था. तो देयर वाज अ बुक कॉल्ड मुंबई दर्शन. वी हैड दैट बुक एंड आई यूज्ड टू जस्ट पिक वन प्लेस एंड से चलो मम्मा चलते हैं, घूम के आते हैं. Wow. इट वाज लाइक, मतलब इतना मुझे डर नहीं लगा, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती थी. एक फन लगा मुझे कि हाँ ठीक है तो है, एक्सेप्ट करते हैं. और कभी ये नहीं सोचा कि नहीं कुछ बाद में कुछ चीजें खराब हो जाएंगी. हमेशा यही पॉजिटिव थिंकिंग ही रही थी कि हाँ ठीक हो जाएगा, आगे तो ये करना है, अभी वो करना है. आगे का सिर्फ अच्छा अच्छा सोच रही थी, कुछ बुरा नहीं सोच रही थी. एंड डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि लाइक तुम्हारे अंदर विल पावर बहुत अच्छी है, तुम्हारे अंदर होप्स रहती हैं, तुम
पॉजिटिव एनर्जी एकदम अपने अंदर रखती हो, पॉजिटिविटी रखती हो, तो उसकी वजह से तुम बहुत जल्दी क्योर हो रही हो। क्योंकि इट वाज 4th स्टेज कैंसर, तो ओह। डॉक्टर्स को लगा कि आप बहुत लेट आए हो ऐसे करके, बट मेरा जो नेचर है वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का है, मैं सबसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर लेती हूँ। तो उनसे जब मैंने बात की डॉक्टर से, तो उनको भी मतलब मैंने ही समझाया था, मम्मा पापा भी थे, हमने भी समझाया अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि ओके, हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग मतलब डॉक्टर्स से ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं कर पाए, बट लेट्स सी क्या होता है। देन धीरे धीरे चीजें सही होती गई, नए फ्रेंड्स बनाए, देन वर्कशॉप्स होती थी, डांस की होती थी, सिंगिंग की होती थी, फोटोग्राफी की भी हुई थी, एंड राजन सर ने ली थी फोटोग्राफी का वर्कशॉप पूरा अच्छे से। तो उसमें भी काफी मजा आती थी मुझे। मुझे कभी लगा नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। इट वाज लाइक कि मैं लगता है समर कैंप में आई हूँ क्या। वाओ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा। और मैं फूडी बहुत हूँ, बहुत ज्यादा फूडी हूँ। तो बाहर का खाना अलाउड नहीं होता था, फिर भी कभी कभी चुपके से खा लेते थे। चीटिंग राइट। थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत तो चलती, बट अगर कभी होता था कि बहुत मन है और नहीं बाहर का खा सकते, तो मैं खुद ही इतनी मतलब कुकिंग में एक्सपर्ट हो गई थी उतने टाइम तक, थोड़ा बहुत, कि मैं मम्मी से कहती थी कि तुम बनाओ, मैं बताती जा रही हूँ, बस ऐसे ऐसे करते जाओ। तो मैं मम्मा से बोलती थी कि आप बनाओ, क्योंकि मेरा टेस्ट एकदम डिफरेंट रहता है सबसे। और एट प्रेजेंट जैसे अगर कुछ भी बनाना होता है तो घर पे भी मैं ही सबका, अगर कुछ अच्छा बनाना है तो मेरा नाम आता है कि हाँ ठीक है, प्रगति विल कुक। ओह। शुरू से ही मेरा खाने में और घूमने में बहुत इंटरेस्ट रहा है। फिर ठीक हुई तो धीरे धीरे स्कूल भी ज्वाइन किया। स्कूल में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इतनी खास। विग थी, विग को पता नहीं चलने दिया किसी को कि विग थी मेरे पास। खैर कुछ फ्रेंड्स को ही बताया था मैंने कि हाँ विग है मेरे पास। बाकी फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया, एंड एट प्रेजेंट एवरीथिंग इज लाइक कम्प्लीटली फाइन। थोड़े बहुत इश्यूज, मतलब प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत इशू ना हो जाए, बट एवरीथिंग इज नॉर्मल राइट नाउ। Oh, happy for you that everything Yes, is normal now. yes, yes, exactly. Yes. So शुरू में आपका 2 साल का डिले हो गया था डायग्नोसिस में. हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे डॉक्टर्स ने टेस्ट किया था, और बायोप्सी भी हुई थी, एफएनएससी, बहुत सारे टेस्ट हुए थे, लेकिन कुछ आ नहीं रहा था टेस्ट में। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी चीजें, जब एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच गई चीजें, तब चीजें मेरे को पकड़ में आई थी कि हाँ ये कैंसर ही है। वरना डॉक्टर्स ने 9 मंथ तो ट्रीटमेंट कर दिया था कि वो है, ट्यूबरक्लोसिस है। देन Oh. हम लोग भी मतलब एक होता है ना, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, एलोपैथिक में जाए, होम्योपैथिक में जाए, आयुर्वेदिक में जाए, सब ट्राई कर लिया था। हाँ. तो ऐसे तो लगता था मतलब डॉक्टर आधे बन ही गए कि दवाइयों के नाम भी रट गए हैं कि ये वाली लेनी है, वो वाली मेडिसिन लेनी है। तो वो साल कुछ मतलब ऐसा ही गया, स्कूल भी नहीं जा पाई थी। इस बात की बस खुशी थी कि हाँ जब चीजें खराब होने वाली थी उसके जस्ट पहले मैं अपनी स्कूल की ट्रिप गई थी गोवा। वाह, उसमें ही पॉजिटिव देखा आपने. हाँ, मैं हर चीज में मैं पॉजिटिव चीजें ही देखती हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एंड अब जब जो भी चीजें हुई, लोगों को लगेगा कि ये इसकी वीकनेस है, इसको ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यही मेरी स्ट्रेंथ है। एक्चुअली में यही मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे मतलब कभी लगा नहीं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से कुछ लॉस हो रहा है। थोड़ा बहुत पढ़ाई का हुआ, लेकिन वो मैंने कवर अप कर लिया। मुझ में इतनी तो थी विल पावर थी, इतनी अच्छी कैपेबल थी कि हाँ मैंने कवर अप कर लिया अच्छे से। तो अब तो मुझे कोई इशू नहीं लगता। बाकी सब तो नॉर्मल ही है। तो जब फर्स्ट डायग्नोस हुआ था तो आपके पेरेंट्स ने कैसे लिया था ये शॉक? उस टाइम पे तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे, वो मुझे बता नहीं रहे थे। एंड आई टेल यू वन थिंग, जब डायग्नोस हुआ था तो स्टार प्लस पे एक सीरियल आता था बहने करके। ओह. तो उसमें निया शर्मा को, उसमें शायद कैंसर था, तो उसके हेयर फॉल हो गया था काफी ज्यादा। यस, मुझे भी वो सीन याद है. तो आई डोंट नो मेरे अंदर ये इंट्यूशन की पावर है या क्या है, लेकिन मेरे मन में अपने आप मतलब एक बार ऐसे मैंने सोचा था कि यार मैं इतनी बीमार हूँ, कहीं मुझे भी तो नहीं है ये। मैं बस इंट्यूशन आया था। देन उसके बाद जब पता चला तो मैं बस इसी बात कही थी, मेरे बाल चले जाएंगे, मेरे बाल चले जाएंगे। तब मुझे लग रहा था कि यार क्या होगा, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा मतलब एरोगेंट होते थे।
तो डॉक्टर के पास जाने में भी डर लगता था, लेकिन जब मुंबई गए तो वहां पे लगता ही नहीं था कि डॉक्टर के पास जाए, लग रहा है फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, चलो मिल के आ जाएंगे। वाह। उनका रिएक्शन काफी ज्यादा ऐसा था कि अब क्या करें, बट हाँ होप्स तो दोनों ने रखी थी, होप्स किसी ने नहीं छोड़ी थी, लिटरली दे वर लाइक कि जी जान से लड़े हैं मुझे सही करने के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हाँ मेरे को ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। यस। तो आप सिर्फ 13 साल के थे ना उस टाइम? हाँ यस, मैं 12-13 साल की थी तब, 13 साल की थी तब मैं आई थी मुंबई, और जब मेरे को प्रॉब्लम हुई थी तब मैं शायद 11-12 साल की रही होंगी। तो यस। तो आपको ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि उस टाइम तो ऑफ कोर्स आप बच्चे ही थे, कि बाकी है ना आपके सारी एज के स्कूल जा रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और आप हॉस्पिटल में हो, ऐसा कभी थॉट नहीं आया? बस ये थॉट आता था कि मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है, वरना मुझे मतलब ऐसा नहीं था, बीमार नहीं थी, फीवर आता था मेनली सबसे ज्यादा, और पैर में बहुत पेन होता था, तो वो रात में ही होता था ज्यादा करके, पूरे दिन में कभी ख्याल नहीं आता था कि कुछ है भी। तो कभी कभी बर्थडेज पे तो टीचर्स ही घर आते थे मिलने के लिए, टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले थे मुझे मेरे स्कूल के, तो वो मोटिवेट रखते थे मुझे काफी। और फ्रेंड्स उतने खास, इतने बचपन में इतने खास कोई फ्रेंड्स बनते भी नहीं है, टीन एज में ही यस। मेनली बनते हैं, तो इतना ध्यान ही नहीं देती थी, मैं अपने घर पे अपने घर वालों के साथ ही लगी रहती थी। और फिर फीवर आ जाता था तो दवाई मिल जाती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर ठीक हो जाती थी। जब स्कूल की बात आती थी तो ऐसा लगता था, हाँ शुरू शुरू में लगा कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, अजीब लग रहा है, स्कूल में काम छूट रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लगता था। फिर धीरे धीरे लगना ही बंद हो गया कि कुछ टाइम होता है ना कि जैसे स्कूल से छुट्टी मिल जाती तो बच्चे को अच्छा लगता है, तो उस टाइम पे लगा कि हाँ अच्छा लग रहा है। फिर धीरे धीरे मन करता था यार मैं भी, मुझे भी स्कूल जाने का मन कर रहा है अब मुझे भी शायद पढ़ना चाहिए कुछ, या कुछ करते हैं। लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे नहीं जा सकते थे, तो फिर मैं घर पे ही कुछ ना कुछ करती ही रहती थी, और मेनली मैं फूड कुकिंग के चैनल्स ही देखती थी। तो उसी में मैं ज्यादा अच्छे से हो गई कि हाँ ठीक है, कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, तो यही देखते हैं। पढ़ाई में फिर उतना मुझे लगा नहीं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना समझ गई थी मैं कि हाँ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो ही रही है, मुझे दिख रहा है अपने आप में, तो फिर रहने देते, ज्यादा जोर नहीं देते हैं किसी चीज के लिए। मतलब आपने बच्चे होकर भी बहुत मैच्योरली हैंडल किया सब। हाँ एग्जैक्टली exactly, मेरे मम्मी पापा मुझसे कहते हैं कि तुमने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया जब तुमको पता चला कि कैंसर है। एक बार आयुर्वेदिक की दवाई चल रही थी तो उसमें कैंसर का साइन बना हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ है कैंसर जैसा, तो मैंने बोला ये कैंसर है ना, तो कहते हैं नहीं तो। आई वाज लाइक क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, बता दो। तो ऐसा रिएक्शन रहता था, मैं हमेशा मजाक में मस्ती में रहती थी, ज्यादा सोचती नहीं थी, डिप्रेस नहीं होती थी कि ये हो गया अब क्या करूंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी मेरे साथ। तो आपने कीमो रेडिएशन हुआ था आपका? नहीं नहीं रेडिएशन नहीं हुआ था मेरा, सिर्फ कीमोथेरेपी हुआ था, उसी से ठीक हो गया था। तो आपने कीमोथेरेपी के साथ साथ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई किया था? हाँ उस कीमोथेरेपी के साथ नहीं, कीमोथेरेपी की पहले जब कीमोथेरेपी हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी ही ली थी। उसके पहले जो हम लोग इधर उधर भटक गए थे, ये वही वाला पार्ट था कि हम कभी आयुर्वेदिक में जाना पड़ रहा था, कभी एलोपैथिक, कभी होम्योपैथिक, तो ये हमें लगता है हमने शायद गलती कर दी थी उस टाइम पे, और हमको सही रास्ता नहीं मिला। आई डोंट नो क्यों, हो सकता है उतना किस्मत में लिखा था शायद। तो फिर हमने कुछ कहा नहीं, ठीक है अब पता तो चल गया ना कि ऐसे नहीं भटकना चाहिए, कभी किसी को होगा तो हम लोग उसको गाइड तो कर पाएंगे एटलीस्ट। यस। तो यही है कि इतना नहीं भटकना चाहिए, मेन जहाँ पे डॉक्टर के पास जो स्पेशलिस्ट है बस वहीं जाओ। और वैसे भी टाटा में इतनी फैसिलिटीज हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं कि अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी है, एनसी फाइल, जनरल फाइल, प्राइवेट फाइल। तो मुझे लगता है कि उससे बेस्ट हॉस्पिटल इंडिया में तो कोई नहीं है कैंसर के लिए, मुझे एकदम पर्सनली फील यही होता है। ओके। सो आपने कुछ चेंजेस किए थे अपनी डाइट में उस टाइम, ट्रीटमेंट के टाइम? वैसे तो आपने बताया आप चीटिंग करते थे। बट मैं फिर भी। थोड़ी बहुत चीटिंग करती, थोड़ी बहुत घर पे ज्यादा बना के खाती थी, चीटिंग करती भी थी। बट हाँ डाइट ऐसा रहता था कि मुझे जो जैसे पोटैटो वगैरह या फिर मिल्क वगैरह कभी कभी नुकसान कर देता था, तो डाइटिशियन के पास जाते थे, वो जैसा बोलती थी वैसा करते थे। एक्स्ट्रा उनसे पूछ के बोलती थी कि मुझे ये खाना पसंद है, मैं खा सकती हूँ कि नहीं, तो मैं खाती थी, और वो लोग मुझे कुछ टैबलेट्स देते थे जिससे मुझे बहुत भूख लगती थी। लिटरली मैं एकदम, जितनी अभी मैं आपको थिन लग रही मैं उतनी थिन नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा चबी हो गई थी उस टाइम पे।
तो वो कोई टैबलेट देते थे जिससे भूख बहुत लगती थी, तो मैं अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं खा ही लेती थी फिर थोड़ा बहुत बाहर का। बट ये था कि हाँ, अच्छी जगह से खाते थे। कहीं भी ऐसे ऐसे अगर साफ सफाई लगेगी तब खिलाती थी मम्मा, वरना मम्मी भी डांट ही देती थी कि नहीं अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। मतलब हाइजीन का बहुत ध्यान रखते थे। हाँ, हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, मास्क हर जगह लगा के जाते थे। प्लस अगर मुझे घूमने भी जाना होता था, अगर मैं जुहू बीच गई घूमने तो मैं वहां का नहीं खाती थी, मैं वहां से इस्कॉन टेम्पल जाती थी, वहां पे अंदर खाती थी क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में काफी हाइजीन मेंटेन करते हैं वो लोग। तो थोड़ा बहुत वहां पे खाती थी। अब घूमने का शौक है तो घूमूंगी तो फिर थोड़ा बहुत तो खाऊंगी भी। हाँ। तो आपको कभी तो है ना लो फील हुआ होगा उस टाइम, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट जर्नी है ये। अम, तो मुझे लो मेनली तब फील हुआ था जब मैं मतलब शुरू में गई थी, तब मुझे घर की याद आती थी, स्पेशली अपने मामा की याद आती थी, क्योंकि जब भी मुझे कुछ पेन होता था या कुछ होता था तो मामा ही मुझे गोद में लेके टहलाते थे और लाइक कार में लेके घुमा रहे, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो, कि मैं दर्द पे ध्यान ना दूं। तो उनकी बहुत याद आती थी। तो बस वही एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये आया था कि मैं जिस चौल में रहती थी, उस चौल के जस्ट सामने कुछ एक और चौल थी, तो वहां पे लड़कियां थी, तो उनके लंबे लंबे बाल देख के मुझे बहुत जलन होती थी, लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत जलन होती थी। और मुझसे बोला गया था कि बाल को शेव करवा लो, लेकिन मैंने शेव नहीं करवाया बाल। मैंने कहा अपने आप जाने दो, वो ज्यादा ठीक है, मैं शेव करवा के एकदम से नहीं देख पाऊंगी अपने आप को, ऐसे धीरे धीरे यूज हो जाऊंगी उसके लिए। तो मैंने शेव नहीं कराया था। बस यही 2 पॉइंट है जब मुझे बहुत लो फील होता था, वरना मैं अपनी मस्ती में रहती थी। सच में मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कुछ है। बस जब कीमोथेरेपी होती थी तब थोड़ा बहुत, हाँ तबीयत डाउन है तो मैं लेटी रहती थी, सुस्त रहती थी, लेकिन जैसे ही ठीक होती थी तो मुझे बस घूमना है। वाह। मतलब हमेशा मस्ती में एकदम। हमेशा। और अभी भी मेरा यही, मेरे घर वाले मुझसे यही कहते हैं कि इस घर में एक तुम ही हो जो मस्ती में रहती है, वरना सब सीरियस रहते हैं। तो आपको कीमो के कुछ तो साइड इफेक्ट्स हुए होंगे, तो वो क्या थे साइड इफेक्ट्स? हेयर फॉल होता है, वॉमिटिंग हम्म। होता है, और कुछ मेडिसिन देते हैं, तो उससे मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। मेरी हाइट रुक गई, सबसे मेन बात है मेरी हाइट रुकी है उससे, कीमोथेरेपी से। वरना क्लास 5th तक मैं अपनी क्लास में लास्ट, सेकंड लास्ट में खड़ी होती थी, और फिर जब ना 8th 9th में क्लास में आई तो मेरे को शुरू में 3rd में या 4th नंबर पे खड़ा होना पड़ता था, तो मुझे बहुत खराब लगता था कि यार हाइट ही रुक गई, बताओ। जो मुझसे छोटे छोटे थे वो मेरे, मैं उन्हीं के बराबर ही रह गई, वो लोग तो बड़े नहीं, मैं भी उतनी की उतनी रह गई हूँ। तो हाइट में फर्क पड़ा था। और मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद आई साइड पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, आई साइड पे पड़ा। और बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स यस। वीक हो जाती हैं उससे, कीमोथेरेपी से बोन्स बहुत वीक होती हैं, तो उसका थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का कभी कभी लगता है कि हाँ हल्का सा पेन हो रहा है क्या, थोड़ा बहुत। वो भी मस्ती में टाल देते तो फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत दिखा देते कि हाँ कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह ले लेते हैं, या फिर इंजेक्शन अगर बोलते हैं तो वो ले लेते हैं। तो मतलब सब कुछ मस्ती में टल जाता है। सब कुछ मस्ती में चलता है। हाँ। अगर ऐसा चेंजेस, मतलब उस टाइम पे मैं बहुत मस्ती में, अभी तो फिर भी कह सकती हूँ कि हाँ अगर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है किसी चीज को लेके, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, और अगर मैं थोड़ा भी बाहर गई तो एक होता है ना कि मन में वहम होता है, यार कुछ हो तो नहीं रहा है। ऐसा हल्का सा अभी लगता है। अगर उस टाइम पे कुछ ऐसा सिचुएशन होती तब मुझे उस टाइम पे लगता ही नहीं वो चीज, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में ही मस्त रहती थी। मैं कभी पेंटिंग कर रही हूँ, मैं कभी बैठ के गाने सुन रही हूँ, मैं कभी गाना गा रही हूँ, मैं कभी मम्मी से बात कर रही हूँ। वहां पूरी चौल में जितने लोग रहते थे, जितने पेशेंट थे, कोई मेल फीमेल कुछ नहीं, सबसे बात हो रही है मेरी, मैं सबसे हंसी मजाक कर रही हूँ। सब लोग मतलब उन, और उस इस जर्नी में मैंने बहुत लोग से मिली हूँ, और बहुत लोग अभी भी कांटेक्ट में है, टच में है, दीदी भैया करके सबसे बात कर रही हूँ। मतलब ऐसा लगता है फैमिली मिल गई है, एक और कोई दूसरी फैमिली मिल गई है मुझे, जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हैं हमारे। तो हाँ। मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, अगर कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है मैंने इन सब चीजों से। यस। तो आपको क्या क्या लाइफ लेसन्स मिले आपकी इस कैंसर जर्नी से? जर्नी से लेसन, सबसे ज्यादा पेशेंस। सबसे पहला लेसन है पेशेंस। ये हॉस्पिटल में हर चीज में लाइन, हर चीज में लाइन। अब अगर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइन को लेके नहीं है, मतलब क्यों में नहीं चलते हैं सब लोग, तो पेशेंस हमने सीखा। सॉरी और थैंक यू बोलना सीखा सबसे ज्यादा। सॉरी और थैंक यू, सॉरी एंड थैंक यू सबसे ज्यादा।
प्लस सबसे बड़ा लेसन तो यही मिला कि जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। कभी होप्स नहीं छोड़नी चाहिए हमें कि कल को ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कल के बारे में सोचना नहीं है, एट प्रेजेंट जो हो रहा है वो सोचो। वो भी अगर खराब चल रहा है तो उसके बारे में मत सोचो, कुछ अपने आप को डाइवर्ट करना चाहिए, अपनी कोई हॉबी बिल्ड करनी चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। रोना आए तब भी नहीं रो, बस हंसो, ताकि सामने वाला भी मोटिवेटेड है, सामने वाले को भी खराब ना लगे। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक ओपीडी में, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ही हूँ क्या सबसे छोटी। जब मैंने वहां पे देखा कि 6-6 महीने के बच्चे हैं, अभी एकदम से पैदा हुए हैं, जिंदगी कुछ देखा नहीं है, बाहर दुनिया कैसी है देखा नहीं है, उनको ये सब हो रहा है, उनको तो पता भी नहीं। तो मैं यार मैं किस चीज के लिए इतना डरूं, इतने डॉक्टर्स हैं, सब ट्रीट कर रहे हैं। और मैं पहली बार मम्मी के सामने रोई थी वहां पे, सिर्फ उन बच्चों को देख के कि मम्मा इन बच्चों ने तो कुछ भी नहीं देखा, मैंने तो थोड़ा बहुत देख भी लिया है। इन बच्चों ने कुछ भी नहीं देखा है, तो ये लोग कैसे, मतलब ऐसे क्यों। तो मम्मा भी, उनको भी लगा कि हाँ मैं पहली बार इमोशनल हुई हूँ ऐसे। बट धीरे धीरे मैंने चीजें बहुत कामली हैंडल करी, मम्मी को भी उतना परेशान नहीं किया चीजों को लेके। और मैं हर चीज का ध्यान रखती थी कि फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम ना आने दूं मैं। अगर यहाँ पे हो रहा है, मेरी फैमिली में कुछ हो रहा है, तो मैं, अगर मुझे लगता था कि कोई चीज़ मुझे चाहिए, तो मैं सोचती थी कि लेट मी थिंक कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस नीड है इस चीज़ की कि नहीं। अगर नहीं होती थी तो मैं बोलती ही नहीं थी ये चीज़ मम्मी से कि मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एक बार बोलूँगी तो वो ला के दे देंगे तुरंत। वो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पैसे है नहीं है या फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है नहीं है। तो मैं बस लेट गो करती थी धीरे धीरे कि अगर कुछ भी चाहिए तो बस सोच लो पहले अच्छे से, फालतू पैसा वेस्ट ना हो। मनी को कैसे यूज करना है ये भी मैंने वहीं से सीखा है कि एकदम से ऐसे नहीं फेंका जाता पैसा, ये भी बहुत अच्छे से सीख लिया मैंने वहां से। वाह, और सिर्फ 13 साल की उम्र में हुआ ये सब। एग्जैक्टली ये सब 13 साल की उम्र में हुआ। और तभी अभी आज के फ्रेंड्स अगर मेरे साथ हैं तो उनको लगता है कि मेरी थिंकिंग काफी डिफरेंट है, तो थोड़े बहुत क्लैशेस हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको भी समझ आ जाता है कि हाँ मैं सही कह रही थी बाद में, क्योंकि वही चीज होती है। तो इस चीज के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि हाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है वहां से। सिर्फ ठीक होके आना मेन चीज नहीं थी, सीखने को भी इतना कुछ मिल गया, मेरे अंदर चेंजेस बहुत आए। पॉजिटिव चेंजेस भी थे, नेगेटिव भी थे कि हाँ नेगेटिव में थोड़ा इरिटेशन होती है लोगों से या चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन वो चीज़ हैंडल हो जाती थी कि छोटी सी बात पे चिढ़ जाना ये सब होता था, पर धीरे धीरे वो सही हो गया था। एंड सब कुछ पॉजिटिव में ही लिया मैंने, कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं। वाह, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि हमें क्रिएटिविटी बहुत हेल्प करती है इस जर्नी पे। कुछ भी हो, पेंटिंग हो या जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, हमें खुश रखती है। तो आपने क्या चीज़ें ऐसी ट्राई की थी जो आपको हेल्प करी हो? सबसे पहला तो मैंने ओपीडी में ही डॉक्टर्स बैठते थे, तो मेरी जो डॉक्टर थी डॉक्टर पिंकी शाह, मेरी फेवरेट डॉक्टर थी वो। एंड उनकी शादी होने वाली थी, तो मुझे बुरा लग रहा था कि यार ये मैम तो चली जाएंगी, मुझे देखेंगे तो देखेगा कौन। तो मैंने उनके लिए एक फोटो बनाई थी, एक पेंटिंग बनाई थी, गणेश जी की पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद मैं पेंटिंग पे ही चलती गई, मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। फिर क्रिएटिविटी काम आती है, तो मैं गाना गाती थी। जब होप का प्रोग्राम होता है वहाँ पे, तो मैंने डांस में भी पार्ट लिया था, फोटोग्राफी में भी लिया था, जेम्बे बजाया था और गाना भी गाया था। वाह। तो मैं सब कुछ करती थी कि कोई चीज रह ना जाए, कोई कसर ना छोड़ दूं, मैं सब कुछ करूंगी। सब ट्राई करना है सब मतलब। ट्राई करना है। और घूमती तो रहती थी, तो उसी में मेरा मन बटा रहता था। अगर कभी बोर हुई या परेशान होती थी, ऐसा कभी हुआ नहीं कि कभी परेशान हुई, बोर ज्यादा होती थी मैं, तो मैं लोगों से बात करती थी जो आसपास में रहते थे, या मेरी उनकी मम्मियों से ही बात होती थी जो छोटे बच्चे होते थे। तो उनकी मम्मियों से बात करती थी। कुछ आसाम के लोग थे चौल में, आसामीज वहाँ पे आते हैं, तो आसाम के लोगों के बारे में जानती थी। मैं उनसे पूछती थी आपके यहाँ कैसा कल्चर है, क्या है, मैं ये सब चीजें पूछती थी उनसे। तो जैसे नॉलेज एकदम खुल के भर के आ रही थी अंदर कि हाँ यहाँ से भी लोग आए हैं, ऐसा होता है यहाँ वैसा होता है। मैं लोगों से इंटरेक्ट करती थी ज्यादा कर, बेसिकली मैं लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करती थी, तो इसी में मेरा मन डाइवर्ट रहता था। अच्छा। अच्छा है, मतलब सिर्फ 13 इयर्स की एज में आप कल्चर जान रहे हो, लोगों से इतना बात कर रहे हो, बड़ों से बात कर रहे हो। एग्जैक्टली। वाह।
अभी भी अगर दोस्तों के घर जाती हूँ तो दोस्तों से बात तो होती ही है, उनकी मम्मियों से ज्यादा पटरी खाती है मेरी की ये दोस्त है, तुम्हारी ये बहुत समझदार है, ये वो ऐसे बोलता है, तो मैं कहती हूँ आंटी अब पता नहीं समझदार हूँ या ज्यादा बोल रही हूँ बस जो है सच बोल रही हूँ। तो आपको लगता है अगर आपको कैंसर नहीं हुआ होता तो एज अ पर्सन जो आप में चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज, वो बिल्कुल नहीं आता, या फिर इससे ज्यादा अच्छी लाइफ होती है आपकी? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छी लाइफ होती है कि मैं बचपन में बहुत बदमाश थी, बहुत शैतान थी, पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। तो फिफ्थ तक, इनफैक्ट मैं सच बात बताऊं, मैं थर्ड में एसएसटी में फेल हो गई थी बट देन फिफ्थ में काई मतलब एसएसटी में कभी पास नहीं, ज्योग्राफी मुझे बहुत खराब लगती थी, मैं कभी पास नहीं हुई थी, तो मैं बता रही थी पढ़ाई में मैं उतनी अच्छी नहीं थी। बट देन जब मैं 9th में मैंने फिर से अपना स्कूल ज्वाइन किया, तो मैं अपनी क्लास में पहले 7th आई, देन 10th में मैं 92% आए, देन 11th में सेकंड आई, देन 12th में 92% आए। तो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं कैंसर नहीं हुआ होता मुझे, तो शायद ये परसेंटेज या इतनी अच्छी पढ़ाई में ना हुई होती मैं। जितना लोग बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि पढ़ाई ये कर लेंगे यार ये वो, मैंने उतना कैजुअली नहीं लिया था, मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड रहती थी। और प्लस मैं अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस रहती थी कि हाँ मुझे कुछ करना है आगे, मैं पीछे नहीं रहना चाहती कि जरा सा भी लगे कि मैं पीछे थी। और इनफैक्ट टीचर्स ने भी मुझसे बॉन्ड साइन कराई थी कि आपने 6, 7, 8 नहीं पढ़ी है और आप 9th में पढ़ना चाह रहे हो, तो हम आपसे बॉन्ड साइन कराएंगे, अगर आप इतना परसेंटेज मार्क्स लाते हो तो हम आपको 9th में आगे पढ़ने देंगे, वरना हम आपको 8th में पीछे वो कह देंगे कि आप पीछे पढ़ो, 8th में ही पढ़ो अब। तो उनसे बॉन्ड वॉन्ड साइन कराई थी, और बॉन्ड साइन करने के बाद अच्छे नंबर आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है अगर कॉमर्स से पढ़ना है तो तुम कॉमर्स से पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने साइंस की जगह कॉमर्स स्ट्रीम स्विच कर ली थी। तो अगर कोई मतलब ये बात सुने तो मैं बस उनसे यही कहूंगी कि अगर गलती से भी लगता है कि साइंस की वजह से आप पीछे रह जा रहे हो या कुछ ऐसा, कॉमर्स बहुत अच्छी स्ट्रीम है, कॉमर्स में स्विच कर सकते हैं और बेसिकली साइंस को लेके बीटेक और यही सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मेडिकल लाइन में अगर बहुत मन है तभी साइंस में जाए, वरना कॉमर्स को लेके ही सारी चीजें मिलती है, बैंक हो, सिविल सर्विस हो, सीए हो, सीएस हो, लॉ हो, बहुत सारे ऑप्शन है यस। तो आप करियर के लिए भी आप कोचिंग ले सकते हो अब आप हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो हाँ गाइड कर सकती हूँ। इनफैक्ट मेरे जूनियर मुझसे ही गाइडेंस लेते हैं, ऑल्दो मुझसे उतना बात नहीं करते, लेकिन जब गाइडेंस की बारी आती है तो मेरे पास आते हैं ओह आप लिखते भी बहुत अच्छा हो, मैंने आपकी पोएट्री सुनी थी और बहुत अच्छी लगी मुझे वो। एक्चुअली मैंने स्टार्ट ही किया था लॉकडाउन में, परेशान हो गई थी मैं करूँ क्या, तो मैंने सोचा लाओ कुछ लिखती हूँ, कुछ थॉट्स आए मन में, तो मैंने वही थॉट्स को लिखना स्टार्ट किया। देन वो मेरी पहली पोइट्री थी कि हाँ मैंने पहली बार लिखा है जिंदगी में कुछ। तो उसके बाद मैंने एक दो लिखी हैं, तो वही अभी थोड़ा उन पे वर्क और करना है, फिर वर्क करके पोस्ट करूंगी उन्हें। आपको कोई आपकी पोयम याद हो अभी बोलना चाहेंगे तो? कोई भी पोयम आपकी। मुझे एक फ्रेंड मिला था मुंबई में, तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्ड थी, बट देन 2018 में उसकी डेथ हो गई और मैं मिल नहीं पाई थी उससे, तो मैंने उसके लिए ही लिखा था थोड़ा सा लाइन। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, एक सेकेंड में देख लूँ हाँ हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है, तो मैंने ये लिखा था कि एक यार मिला था ऐसा भी जिसे फिक्र मेरी मुझसे ज्यादा थी, मिला तो था एक अजनबी की तरह पर पता न चला कब खास बन गया, बीच बाजार में हंसा करते थे हम, ना किसी से फिक्र ना किसी से शर्म, रास्ते थे अलग मंजिल थी एक, रास्ते थे अलग मंजिल थी एक, पर हारना न चाहता था हम में से कोई एक, हार जीत तो है किस्मत का एक खेल, और इसी बात पे ध्यान में रख के हम जीते थे सपने अनेक, पता न चला कब सितारा बन गया मेरा यार, बस रह गई उम्मीदें कि फिर कब मिलेंगे इस बार। वाओ, एक्चुअली ब्यूटीफुल। वो मतलब ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कुछ जो बहुत स्पेशल होते हैं, भले ही दूर होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं।
तो हम लोग साथ में ही, फोटोग्राफी सेशन जब हुआ था, वर्कशॉप हुई थी, तो हम लोग साथ में ही थे। हम लोग ट्रीटमेंट होती थी तो उन लोग के साथ में बैठ के हंसती थी। मतलब हम लोग इतना हंसते थे हॉस्पिटल में कि हम लोग को नर्स देख के हम लोग को कहती थी चुप हो जाओ तुम दोनों। तो हम लोग शैतानी करते थे बहुत, बट हाँ वो बहुत अच्छा फ्रेंड मुझे मिला था। एंड आई विश मैं फिर से कभी कभी किसी ऐसे फ्रेंड से फिर से दोबारा मिलूं एक बार, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मिलना चाहती थी उससे। इनफैक्ट मैं दिसंबर में 2018 में चेकअप के लिए आने भी वाली थी मुंबई, बट सितंबर में ही उसकी डेथ की न्यूज आई, तो मतलब बहुत ज्यादा शॉक में थी कि यार मैं तो मिलने वाली थी और ऐसा हो गया। तो आज भी मुझे मतलब उसकी सारी यादें मेरे पास है। मैंने उसके लिए ड्राइंग स्केचिंग की थी, उसकी फोटो बनाई थी, और मैंने ये पोएम लिखी है। मतलब काफी मेमोरीज है मेरे पास, अच्छी भी है बुरी भी है सब कुछ है, लेकिन सबको मैंने अच्छे में ही कन्वर्ट करके रखा है। कुछ ऐसा इमोशनल जैसा नहीं होने दिया मैंने चीजों को कि मैं थोड़ा भी इमोशनल हो जाऊं। इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए। yes. आपकी पॉजिटिविटी का क्या राज है? अब ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। आपकी स्माइल, आपकी हंसी बिल्कुल कॉन्टेजियस है, बोल सकते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता है मैं पॉजिटिविटी का क्या राज है, बट हाँ कभी 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 ऐसा होता है कि मैं दूसरों को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ चीजें। जब मेरी बारी आती है खुद को समझने को, तो मतलब सब कोई हार जाएगा। बाद में मैं खुद को बैठ के समझाती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना है, वैसा। तो मुझे नहीं पता कि यार पॉजिटिविटी कैसे आई मेरे अंदर, बस आ गई वो, पता नहीं कैसे, बस वो आ गई। मतलब आपने जो भी बताया शुरू से लेके अभी तक सारा बिल्कुल हंसते हुए और मस्ती में बताया सब कुछ। कीमोथेरेपी हो, आपकी राइटिंग हो, या कुछ भी इमोशनल पार्ट हो, सारा हंसते हुए बताया है। हाँ, ये इनफैक्ट मुझे हंसना बहुत पसंद है। मुझे मम्मी टोक भी देती थी कि तुम बहुत हंसती हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हंसना अच्छा होता है, हंसना सेहत के लिए। तो यही हंसते हंसते ही सारी चीजें निकलती गई। और जब होप का प्रोग्राम हुआ था तो उसमें गाना गाना था, तो मैंने यही गाना गाया था, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो मम्मी कह रही थी कि तुमको क्या हो जाता है ये। और आपकी पापा मम्मी ने ट्रीटमेंट के बीच में कैसे खुद को हैंडल किया? मतलब फर्स्ट डायग्नोसिस में तो आपने बताया, बट ट्रीटमेंट के बीच में उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा सारा पार्ट। बिल्कुल उनके लिए काफी डिफिकल्ट था। लाइक पापा को जॉब पे जाना है, तो जॉब छोड़ के वो पे लीव पे आते थे, कि पेड लीव उन्होंने बचा के रखी थी। तो उन्होंने भी काफी अच्छा शायद फ्यूचर का सोच रखा था कि हो सकता है कुछ कंटिजेंसी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं बचा के रखता हूँ। तो उन्होंने वही पेड लीव्स अपनी यूज की थी। प्लस और फैमिली मेंबर्स थे, नानी हो गई। आप खुद सोचो, जो लेडी गांव के बाहर कभी निकली नहीं, वो मुंबई में अकेले ट्रैवल भी कर रही है लोकल ट्रेन पे बाद में। उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने भी बहुत चीजें सीखी हमारे साथ। मतलब अगर मैंने सीखा है, तो मेरे साथ साथ मेरे और जो फैमिली मेंबर्स है जिन्होंने कुछ देखा नहीं था, उन्होंने भी बहुत कुछ सीख लिया। तो हर चीज के लिए थैंकफुल हूँ। और प्लस जैसे कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती थी कि कोई नहीं है, तो मम्मी को अकेले रहना पड़ता था, तो मम्मी मुझे अकेले हैंडल करती थी, पापा नहीं रहते थे। तो धीरे धीरे मतलब यही प्रॉब्लम आती थी, मेन इशू की अकेले रह जाएंगे, वरना फाइनेंशियली चीजें धीरे धीरे वो कर रहे थे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी तो मुझे बताया नहीं, या नहीं मुझे पता नहीं चला इतना, बट हाँ इतना मन में था कि मैं फाइनेंशियली और ज्यादा ओवरबर्डन चीजें ना हो जाए मेरी वजह से। तो मैं थोड़ा बहुत चीजें संभाल के रखती थी कि हाँ मैं कुछ ज्यादा डिमांडिंग ना बन जाऊं। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि वो परेशान हुए होंगे, क्योंकि मैं ही हमेशा हंसती रहती थी। अगर आपके सामने कोई हंस रहा है, कोई खुश है, तो सामने वाला भी खुश रहता है। अगर आप रोगे या परेशान होगे या चिड़चिड़े बनोगे या किसी चीज को लेके बैठ जाओगे कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा ये वो, तो उस चीज में सामने वाला भी हड़बड़ा जाता है। मम्मी बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती थी जब मैं, अगर कीमोथेरेपी के बाद कुछ प्रॉब्लम होती थी मुझे थोड़ी बहुत भी। वरना पापा पापा और मैं, हम दोनों हमेशा सेम हैं, तो हम लोग हमेशा हंसते हंसते ही चीजें हैंडल करते हैं। मम्मी परेशान होती थी तो मम्मी को समझा लिया जाता था, और ज्यादा नहीं समझ पाते थे या लगता था कि चलो ज्यादा स्ट्रेसफुल डे हो रहा है, कहीं घूम के आते हैं, तो ऐसे ही पैदल पैदल या तो पूरे एरिया में बाजार में ही टहल के आ जाते थे। अगर टाइम होता था तो दूर निकल जाते थे। तो बस धीरे धीरे विद द फ्लो हम लोग चलते रहे, और कभी ऐसे कोई रुकावट आई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ उनको प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मैं ही हमेशा हंसती रहती थी तो खुश रहते थे।
आपको देखकर ही उन्हें मोटिवेशन मिलता था, मतलब हंसते हुए देखकर। हाँ, मैं ये कहूंगी, अपनी तारीफ कर देती हूँ कि मैं इतनी खुश रहती थी, मोटिवेटेड रहती थी, इस वजह से मेरी मम्मा को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी और मेरे पापा भी इतना ज्यादा नहीं सोचते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कभी लो फील किया, और बस उनको जब पता चला कि 4th स्टेज पे है कैंसर, तब उनको खराब लगा, उनको लगा कि बाप रे अब क्या होगा। बट उसमें भी मैं मतलब बहुत नॉर्मली थी कि ठीक है तो है, अब करते हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो होगा ही सब मस्ती में लिया, मतलब एक ही मंत्र है, सब मस्ती में लो। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एक्चुअल में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर नहीं पता हमारा क्या है। और प्रेजेंट में अगर कुछ है हमारे पास, तो जितना कुछ है उसमें एंजॉय कर लो। यस, करेक्ट। क्योंकि फ्यूचर का सोच के अगर प्रेजेंट भी खराब कर दोगे तो क्या मतलब उस चीज का। बस यही एक मत है कि प्रेजेंट अच्छे से जी लो। हाँ, ये नहीं है कि फ्यूचर का मतलब ये है कि करियर भी ना सोचो, अपना बस बैठ जाओ प्रेजेंट में जीना। पर राइट। जब करियर का टाइम है तो करियर का भी सोचो कि पैसे कैसे कमाने, वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट है इतना ज्यादा यस। तो अब आपकी लाइफ कैसी जा रही है, आप क्या करते हो? और कुछ तो आप ऐसे ही बहुत रहते हो, दिख रहा है वो तो बहुत। सबसे ज्यादा मुझे मेकअप बहुत पसंद है। मैं डिफरेंट डिफरेंट मेकअप लुक्स ट्राई करती रहती हूँ अपने ऊपर। प्लस अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर है मेरा, और थर्ड ईयर में आ गई, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, थर्ड ईयर में हूँ। और धीरे धीरे किसी एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख रही हूँ, गवर्नमेंट सर्विस की तरफ। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे की बात यस। आगे ही पता चलेगा हाँ। तो कुछ भी मैसेज आप पेशेंट्स और कैregivers को देना चाहते हो तो? एक यही मैसेज है कि हमेशा हंसते रहना चाहिए, जैसे मैं हंस रही हूँ और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कल को कुछ हो ना जाए। कभी भी डरना नहीं चाहिए किसी चीज से। आप लोग कुछ रीजन की वजह से कोई चीज आपकी लाइफ में होती है, तो हो सकता है आगे, अगर अभी तक कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो इसका मतलब एंड नहीं है, कुछ अच्छा होगा तब उसको एंड समझते हैं हम। और परेशान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि बस एकदम टेंस हो रखे हैं कि क्या होगा, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। ये कैंसर हो गया चीज बहुत पहले बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, आज के टाइम पे एकदम नॉर्मल हो चुकी है। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट आते हैं, कीमोथेरेपी ना देना पड़े इसके लिए भी और भी चीजें आती हैं कि रेडिएशन भी हो गया, और भी 2-4 ट्रीटमेंट ऐसे आए हैं जो तुरंत तुरंत ठीक कर रहे हैं कैंसर को। काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, इंडिया हमारा बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो इतना डरना नहीं चाहिए किसी चीज के लिए। सब कुछ बहुत ही आराम से कामली लेना चाहिए, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। आपकी जर्नी आपको एक सेंटेंस में सम अप करनी हो तो वो क्या सेंटेंस यूज करेंगे आप? लाइफ इज लाइक अ बाइसाइकिल, कीप इट बैलेंस्ड। और एक सेंटेंस और है, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, enjoy it before it melts। वाओ। ये दो कोट्स यस। मैंने उसी टाइम पे पढ़ा भी था और उस टाइम से मुझे अभी तक याद है। तो एक चीज है कि बैलेंस रखना चाहिए अपनी लाइफ को, और हमेशा एंजॉय करते रहना चाहिए। टेंशन यस। चाहिए किसी भी चीज की, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा आगे चल के। यस। मतलब हमने अभी शायद 40 मिनट बात की होगी और बहुत हैप्पी मोमेंट रहे हैं अभी ये। Yes, थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग जॉय thank like you, you are doing now. thank you। So thank you so much. Yes, Hope we stay in touch in future too. yes, yes, sure। Yes. Okay, Okay, thank you. Stay safe. Bye.